Good morning student. Now in previous video we already learned about the mode of the class. अब इसमें देखेंगे हम लोग मीडियन. मीन अपना हो चुका है. मीन में हमने तीनों मेथड देखे, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड. Mode में only one method is there and one formula is there, and in median there is also only one method. Means we will find the median by using the two methods. The first is a simple calculation and the second is cumulative frequency curve. इससे भी निकाल सकते हैं, but cumulative frequency curve that method is deleted in this year, means वो अपने सिलेबस में नहीं है. Okay, so let's start the median of the data. It is also one of the central tendency. ये भी आपका central tendency ही है. तो हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं मीडियन. मीडियन, मीन एंड मोड, ऑल दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी. मगर मीडियन का एक अपना एक अलग महत्व होता है, अलग एक अस्तित्व होता है. तो मीडियन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F into H. One by one I will explain the terms which are related to the formula. The first one is L. So L is nothing but it is lower limit of median class. जैसे मॉडल क्लास में आया था वैसे ही lower limit of median का lower limit, and it is the total frequency, or we can say that total frequency of the data. Okay, CF is nothing but the cumulative frequency. अब ये बताऊंगा मैं आपको. Cumulative frequency of the class preceding the median class. Means median class के पहले का cumulative frequency. मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास रहेगा उसका cumulative frequency. After that F, it is the frequency of median class, and the last one is H. ये तो आपको पता है, class width, or we can say that class size, class width या फिर class size. Now here the important thing is that the median class, because in each and every cases the median class is there. So what is meant by the median class, that we will explain, that we will understood by using the problem. एक एग्जांपल में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये cumulative frequency क्या होती है. और cumulative frequency दो टाइप की होती है. एक होता है less than type और दूसरा होता है more than type. One example I will explain. Here class, here frequency, here cumulative frequency, that is less than type, और दूसरा लेंगे cumulative frequency more than type. दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे. If the class are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 in this way, okay? And the frequencies are 3, 4, 2, 7, ... बहुत सारे. अब लेस देन टाइप में क्या करना है आपको? ऊपर से एडिशन करना है. ऊपर से एडिशन मींस दिस इज ऑफ योर 3 as it is. अब ये 3 इसमें ऐड करेंगे +4, that is of equals to 7. So cumulative frequency हो गया इसका सेकेंड क्लास का 7.
After that 7 plus 2 that is of equals to 9 and 9 plus 7 that is of equals to 16 and in this way. So we will get at the end we will get the total frequency. यहां पे मिलेगा आपको total frequency means less than टाइप में cumulative frequency आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी का ऊपर से एडिशन करना है और एंड में मिलेगा आपको टोटल फ्रीक्वेंसी. ये समझ गए. मोर देन टाइप में क्या करना है आपको, मोर देन टाइप में नीचे से एडिशन करना है. मी से नीचे वाला 7 है तो इसका 7 आएगा. उसके बाद में 7 प्लस 2 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 9. आफ्टर दैट 9 प्लस कितना है 9 plus 4 that is of equals to 13. After that 13 plus 3 16. 13 plus 3 that is of equals to 16. मी से ऊपर में मिलता है आपको एडिशन. ये समझ में आ गया. क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है. एक होती है लेस देन टाइप में और दूसरी होती है मोर देन टाइप में. लेस देन टाइप में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एडिशन करना पड़ेगा 3 का एज इट इज, क्योंकि 3 के ऊपर में कुछ नहीं है इसीलिए 3 का एज इट इज. सेकंड के लिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16. ये हो गया लेस देन टाइप में. मोर देन टाइप में क्या होगा 7 एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे मान के चलो कुछ नहीं है तो ये हो गया 7. 7 प्लस 2 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 9. 9 प्लस 4 13 एंड 13 प्लस 3 16. लेस देन टाइप में एडिशन आता है नीचे, मोर देन टाइप में एडिशन आता है ऊपर. इतना समझ गए. अब इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे. ये लेस देन क्युमुलेटिव, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो सोचिए. लेस देन टाइप में आपको समझ में आ रहा होगा 3 7 9 16 कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है. ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ एग्जांपल में आपको डायरेक्टली क्लास दिए रहेंगे या फिर लेस देन क्लास दिए रहेगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 ऐसा दिया रहेगा और वहां पे डायरेक्टली ये फ्रीक्वेंसी ना देते हुए वहां पे लिखा रहेगा 3 7 9 16. मींस आपको पहचान में आना है कि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वो लेस देन टाइप में है कि मोर देन टाइप में है. That you should must be understood. Okay? फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व करेंगे तो कभी ज्यादा कभी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होते रहेगा. मींस द ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज आर कभी ज्यादा है तो कभी कम है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग नहीं है और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग भी नहीं है. मगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है और यहां पे कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है. दिस इज असेंडिंग ऑर्डर और दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ये ध्यान में रखना है कि लेस देन टाइप में असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, मोर देन टाइप में डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा फ्रीक्वेंसी. अब सेकंड थिंग, फ्रीक्वेंसी से हमको क्या पता चलता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. लेस देन 10 एक्चुअल में क्या है, ये लेस देन टाइप है तो लेस देन 10 ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहां पे 3. यहां पे मैं बोल रहा हूं कि लेस देन 20. लेस देन 20 का मतलब होता है 10 to 20 नहीं, वो कहां से आएगा 0 to 20. लेस देन 20 का मीनिंग होता है 20 से कम. तो 20 से कम मींस 17 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो 20 से कम मींस ये दोनों का एडिशन दैट इज 3 plus 4 7 आगे 7. समझ में आ गया ना. मोर देन टाइप में क्या होगा 40 से ज्यादा, सॉरी 30 से ज्यादा. मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लेते हैं, लेस देन टाइप में अपर लिमिट लेते हैं, वो ध्यान में रखेंगे. मोर देन 30 से ऊपर, तो 30 से ऊपर मींस ओनली 7. 20 से ऊपर मोर देन 20, मोर देन 20 का मतलब 20 या फिर उससे ज्यादा. तो 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है. तो ये दोनों का एडिशन मींस 20 से ऊपर. वही लेस देन टाइप में लेस देन 20 मींस 0 to 20, लेस देन 30 मींस 0 to 30, लेस देन 40 मींस 0 to 40. तो यहां पे टोटल आ जाएगा आपका सम आ जाएगा 60. Okay, the same thing we will understood in one of the example. Now here find the median of the following data. Okay, so
here I will explain this question. Monthly consumption in unit. Monthly consumption in unit means क्या? Means जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है that is considered as a unit. तो मंथली में कितना कंजम्पशन होता है उसका एक सर्वे किया गया है, कुछ लोगों के घरों में सर्वे किया गया और उस सर्वे से हमको पता चला है कि जो लोग 65 यूनिट से लेके 85 यूनिट तक जो यूटिलाइज करते हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, ऐसे 4 कंज्यूमर्स है। सिमिलरली 85 to 105 5 कंज्यूमर्स है, 105 to 125 13 consumers है। तो in this way this is the unit and this is the number of consumers. Okay? तो ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है कि मिनिमम जो यूटिलाइजेशन है, कंजम्पशन है वो 65 है और मैक्सिमम कंजम्पशन है यहाँ पे 205 205 यूनिट का कंजम्पशन है एक फैमिली का, एक कंज्यूमर का। ओके? उसी तरह से यहाँ पे ये उसके ऑब्जर्वेशन से फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको टेबल में लिख लेते हैं मंथली कंजम्पशन और वी कैन सी दैट क्लास इंटरवल यहाँ पे आ गया फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे आ गया CF और वो भी कौन सा? लेस देन टाइप। चाहे आप लेस देन टाइप में निकालो या फिर मोर देन टाइप में निकालो, व्हाटएवर यू वांट। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, and here 185 to 205. Okay? And the frequencies are 4, 5, 13, 4, 5, 13. After that 20, 14, 8, 20, 14, 8 and last one is a 4. Okay? ये हो गया अपना दो चीजें, एक क्लास इंटरवल आ गया जिसमें कंजम्पशन आ गया और दूसरा आ गया फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ द कंज्यूमर आ गया। नाउ वी विल फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड वो भी कौन सी टाइप में? लेस देन टाइप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? ऊपर से एडिशन करना है, तो दैट इज नथिंग बट द 4। उसके बाद में इट इज 4 plus 5 इट मींस 9, 9 plus 13 that is of equals to 22. Okay? And here 22 plus 20 that is 42. Here 42 plus 14 that is 66. Got it? बराबर है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 4 plus 56, not 66, it is 56. 56 plus 8, 80, sorry 80 नहीं, sorry 80 नहीं, कितना? 4, 64 and 64 plus 4 it means that 68. So this is of your total frequency. Okay? इसका टोटल करके देखेंगे, this total and this total both are same, it should be same. 4 plus 5 9, 9 plus 3 12, 12 plus 0 12, 12 plus 4 16, 16 plus 8, 16 plus 8 24, बराबर है क्या? 16 plus 8 24, 24 plus 4 28 and 8 carry 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, correct. So this value and this value both should be same. दोनों कैसे आनी चाहिए? इक्वल आना चाहिए and this is the value of n. ये जो n आया था ना, ये n total frequency that is of equals to n. Now we will find here n is equals to 68, therefore n upon 2 it means 68 upon 2 that is of equals to 34. ये आ गया आपका 34। तो n/2 निकाला हमने 34, n/2 कितना आ गया? 34। अब ये जो वैल्यू है n/2 का वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी का जो हाफ किया था, हाफ क्यों किया? क्योंकि हमको निकालना है सेंट्रल टेंडेंसी and median is also one of the central tendency, तो naturally
वी विल फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। तो डेटा में टोटल फ्रीक्वेंसी है 68 यानी 68 फैमिली 68 कंज्यूमर के हमने ऑब्जर्वेशन लिए, तो उसमें से बीच का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा यहाँ पे 34th वाला ऑब्जर्वेशन बीच का ऑब्जर्वेशन है, तो उसको कंसीडर किया हमने। सो n/2 इज इक्वल टू 34। अब आपको देखना है कि 34th ऑब्जर्वेशन कहां पे आएगा। अब यहां पे देखो 4 लेस देन 85 वाला कितना है 4 ऑब्जर्वेशन, लेस देन 105 वाले 9 ऑब्जर्वेशन, लेस देन 125 वाले कितने ऑब्जर्वेशन है 22 ऑब्जर्वेशन है, और लेस देन 145 वाले ऑब्जर्वेशन कितने हैं 42। हमारे पास में है 34। ये 34 नंबर यहां पे कहां आता है वो चेक करना है। यहां पे 34 नहीं आ सकता क्योंकि ये 4 ही ऑब्जर्वेशन है। यहां पे 9 ऑब्जर्वेशन हो गए, टोटल 9 यानी स्टार्टिंग से 9 ऑब्जर्वेशन है ना, असेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर करेंगे तो स्टार्टिंग से 9 ऑब्जर्वेशन, यहां पे स्टार्टिंग से 22 ऑब्जर्वेशन तक यहां पे पहुंचे, यानी 23 थर्ड वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो आ गया नए इसमें 125 टू 145 में। कहां से कहां तक 23 से लेके 42 तक, यानी आपका जो 34 वाला जो नंबर है, ये जो पर्सन है 34 वाला नंबर, ये कहां पे आएगा ये 42 के अंदर आएगा, क्योंकि 23 के बाद 42 तक यहां पे है। तो इसका मतलब ये जो क्लास रहेगा ना, ये क्लास रहेगा आपका मीडियन क्लास, इसको कहेंगे हम लोग मीडियन क्लास। समझ में आया कि नहीं आया? आगे इतना ध्यान में किसको हमने मीडियन क्लास कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, मीडियन क्लास किसको कहा हमने, सबसे पहले n निकाला, उसके बाद में n/2 निकाला, n/2 आपका 34 आया। 34 आपको ऑब्जर्व करना है लेस देन टाइप में, मोर देन टाइप में भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं जरूरी कि लेस देन टाइप में ही करना है, आप मोर देन टाइप में भी कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहां पे लेस देन टाइप में ऊपर से एडिशन आ रही है, तो यहां पे 4 है, यहां पे 9 है, 22 है, 42 है, तो 42 है तो नेचुरली ये 34 नंबर यहां पे आएगा, क्योंकि 22 तक यहां पे है, और 23 के बाद में जो भी ऑब्जर्वेशन है 23 कंज्यूमर के बाद में सभी के सभी कंज्यूमर यहां पे आएंगे, कहां तक 42 तक। यदि 43 होता तो ये लेते हम लोग, क्योंकि यहां तक 42 है। समझ गए? अब ये हो गया आपका मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आ गया तो आप फटाफट आंसर निकाल सकते सभी के सभी। मीडियन क्लास आ गया तो इसका जो लोअर लिमिट रहेगा वो रहेगा वैल्यू ऑफ L। सो L इज इक्वल्स टू 125। सिंपल हो गया काम। उसके बाद में आता है N इज इक्वल्स टू 68 है ऑलरेडी आपके पास। CF चाहिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसका, यानी इसके पहले का क्लास ये वाला हो गया 105 टू 125, इसका फ्रीक्वेंसी आ गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया 22, तो 22 आ गया इसका आंसर। उसके बाद में आता है F, तो F का वैल्यू हो गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी 20 है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 20। उसके बाद में दिया है H, तो H फाइंड आउट करेंगे। H इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द क्लास, तो विड्थ ऑफ द क्लास में कौन सा 145 माइनस 125 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 20, तो H का वैल्यू कितना हो गया 20। अब आपके पास में सभी के सभी वैल्यू अवेलेबल है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन द फार्मूला। सो व्हिच इज दैट फार्मूला? मीडियन इज इक्वल्स टू, फार्मूला है अपने पास में, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। जो फॉर्मूला लिया है हमने वो सिंपल फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। सो L, द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू 125 प्लस ब्रैकेट में n/2 मींस कितना 34 ऑलरेडी निकाल के रखे हमने। CF इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय F मींस कितना 20 इनटू H। ये कैलकुलेशन आपका इजी हो गया। अभी कैलकुलेशन करना इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मीडियन क्लास। ओके, तो H का वैल्यू हो गया आपका 20, गॉट इट। ये आ गया 125 प्लस ये 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 34 माइनस 22, सो वी गेट हियर 4 minus 2 that is of equals to 2, 3 minus 2 means 1,
So what we will get? 5 plus 2 7, 2 plus 1 3, and this is of your 1. So what is the median of this class? 137. अब इसी एग्जांपल में आपको बोला है कि मीन भी निकालो और मोड भी निकालो और साथ में उनको कंपेयर भी करो. ओके, तो आप मीन कैसे निकालेंगे? जो आपकी मेथड है डायरेक्ट मेथड से निकालो, या फिर यू कैन यूज एनी अदर मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ द डाटा. सिमिलरली मोड कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और मीडियन तो आपने पहले निकाल के रखा है. तो यहां पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. मान के चलो मीन यहां पे आ गया 132, तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में? कंपेयर क्या करेंगे? मीन इज लेस देन द मीडियन, या फिर मोड इज मोर देन द मीडियन, ऐसा भी बोल सकते हैं. मींस यू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ दैट. क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप और मीडियन क्लास. मीडियन क्लास कैसे लिया? ध्यान में आ गया, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ किया, और ये जो हाफ है ये कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है उसको चेक किया, और जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया उसी को हमने मीडियन क्लास बोला. उसके पहले का जो CF रहेगा उसको CF बोलेंगे, उसी का फ्रीक्वेंसी F बोलेंगे, लोअर लिमिट को L बोलेंगे 125, और अपना कैलकुलेशन करेंगे. ओके, so in this way you solve this example, and same type of the example you have to solve. One more thing I want to told you, that if the classes are not continue, because in this problem या फिर in this क्या बोलेंगे उसको, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है कौन सी? मीडियन और मोड. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्लास शुड बी कंटिन्यू. यहां पे दिख रहा है आपको 85 है, यहां पे भी 85 है, तो क्लास कंटिन्यू होना जरूरी है. मान के चलो यहां पे कंटिन्यू क्लास नहीं है, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, जैसे ये हो गया 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29. The class is not continue. So don't find directly median and mode. So first you continue the classes. क्लास को कंटिन्यू कैसे करना है? इसके पहले का 0.5, इसके पहले का, क्योंकि ये दोनों में ये 9 और 10 के बीच में डिफरेंस हो गया 1 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0.5 आ गया. तो यहां से 0.5 माइनस करो तो यहां पे मिलेगा -0.5. ओके, करेक्ट. और यहां पे आएगा 9.5. करेक्ट. ये हो गया आपका इस तरह से. ये आएगा, इससे 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 to 19.5 आ गया. कंटिन्यू मींस 9.5 यहां पे भी और यहां पे भी है. तो इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू द क्लासेस. क्योंकि इस टाइप का एक एग्जांपल हम लोग लेंगे क्लास कंटिन्यू का, कि जिसमें क्लास कंटिन्यू नहीं है वो आपको करना पड़ेगा. क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जांपल ऑफ मीडियन. तो एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल है उसमें से एक आध दो एग्जांपल तो आपको सॉल्व करना ही है, क्योंकि कुछ एग्जांपल मैं सॉल्व करके देने वाला हूं इसमें. सेकंड एग्जांपल इज आल्सो सॉल्व्ड बाय मी, मैं ही सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. ओके.